Namaste, dear students. Hope all of you are well. Please be at home, be safe. In this whole lockdown, we have completed our chapter number 1 to chapter number 5 from some basic concepts of chemistry, atomic structure, periodic classification, chemical bonding, states of matter. Actually, as we have studied in the states of matter, especially about the gases and liquefations, in the gases we have studied about the temperature, pressure, volume and rest of the things. In this chapter, especially thermodynamics, you can ask me, so what is thermodynamics? First of all, the word thermodynamics has been derived from the Greek word. Therm means heat and dynamics means force. A force which produces heat is called thermodynamics. It is a Greek word. Understand? So first of all, the define of whole thermodynamics is written on the board. The study of energy which do transformation from the subject to the matter of thermodynamics. Means in this whole chapter we are going to study about the energy. Energy means it doesn't depend upon the rate of the reactions that it changes inside or not, but the net energy. What is the net energy in the system or surrounding? We are going to study in this whole chapter. Means first of all you must know thermodynamics. Thermodynamics, therm means already you know very well, it is a Greek word known as heat. Dynamics also the Greek word known as force. But on which matter, on which subject, where we will read these all the things. We will read these all the things as it is written. The law of thermodynamics deals with the energy changes of molecules rather than the microscopic system containing a few molecules. Means whatever the energy is produced in the system and surrounding, the whole things where we are going to study, we are going to study in the system and surrounding. Now you can ask me, sir, what is system and what are the surroundings? Why we are going to discuss these all the things? Because you know very well to do any work we require energy. In the previous chapter, states of matter, we have studied about how the atoms and molecules are in motion, you can say in kinetic energy. As they are in the kinetic energy, they produce some energy, right? What amount of energy they have produces, how much heat they have produces, how much therm they have produces. So in these two things we are going to mainly study, that where we are going to discuss these all the things, it is in the two things, that is system and surrounding. You can ask me, sir, what is system and what is surrounding? So as I have written on the board, you can see a system in thermodynamics refers to that part of universe in which the observation are made and the remaining universe constitute the surrounding. Means wherever we are calculating that energy, that is a system. As for example, if I talk about oven, in the oven you know very well we heat or we bake the cake also, right? So that how much amount of heat has been used to bake the cake. So that oven will be a system and the whole universe will be the surrounding. Except that system, everything is surrounding. And wherever we are doing the work, that is system. Surrounding includes everything other than the system. Means except the system, everything is surrounding. If I talk about, just suppose in this 10 by 10 room, this my classroom, just you can say here is a board, window, door, all the four sides, closed wall. So these all means this is my system, and except this room wherever I am working, except this room everything is surrounding. So if you compare the system and surrounding, in the system the work is done, right? You know very well, if your mama is cooking or boiling a rice, so rice is boiled into the pressure cooker. So the pressure cooker will be a system, and except the pressure cooker everything is surrounding. So wherever the work is done, that is system, and except the system everything is surrounding. In this chapter we are also going to discuss about how many types of systems are there. Open system, closed system and isolated system. I hope all of you have understand about that what this chapter means to say.
especially if I talk about this chapter, then this chapter will include all the informations about the energy. How much amount of energy is used in the system or the surrounding. These are all the things we are going to discuss. So let's start with the types of system. Now first of all, these types of system, why I am talking about, because where this work will be done. Question is where this work will be done. In a system, which type of system? Where the energy will be transferred? Means all the things is going to be happened where? The question is that. So now first of all let me tell you that this thermodynamics is going to give you the knowledge about the energy from the matter to the open system, closed system and isolated system. Now question is, just suppose this three system, open system, closed system and isolated. Open system means your mama is boiling anything, or you have just taken some acid into a beaker. So that beaker is your system, and that beaker acid is being evaluated, or you can say the acidus gas is being evolved. So now where it is going? It is going to the surroundings. Means the energy is being exchanged. In the open system, what will happen? The energy will exchange. Whatever the amount of energy was in the system is moving towards the surrounding. But if I talk about the closed system, in the closed system what happens? They can change the energy but they can't change the matter state. In an open system, you know very well, if we boil a liquid, if we boil a water, what will happen? The matter will change. It will change from liquid to vapor, right? It will change from liquid to vapor. But if I talk about in the closed system, liquid will not change into vapor, but the energy will be changed. Means energy can be transferred from system to surrounding. But if I talk about the open system, in the open system, the energy is also being transferred, the matter is also being transferred. Means there is exchange of matter, exchange of energy in the open system. But if I talk about the closed system, what happens in the closed system? In the closed system, there is no exchange of energy, but there is exchange of energy, but no exchange of matter state. Now, if I talk about isolated system, here neither the matter state nor the energy is being changed. So, as you have seen, the whole thing that today we are going to discuss is about the thermodynamics, open system, closed system, and isolated system. After that, we are going to study about the state of the system. How the system state is there. Is there any doubt between this thermodynamics, closed system, open system, system and surrounding? देखो बच्चों, मेन है क्या, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक का पहले आप मतलब समझो. जब तक वो मतलब नहीं समझोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है, तो थर्मोडायनामिक्स का मतलब आप लोगों ने समझ गया कि एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड है, जिस ग्रीक वर्ड में थर्मोडायनामिक्स को मतलब मूल शब्द जो है ये ग्रीक का है थर्मोडायनामिक्स, जिसका मतलब होता है थर्मो का मतलब होता है, थर्म का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है फोर्स. तो जिस मतलब हीट वाला फोर्स, अब सीधा सीधी हीट वाला फोर्स क्या क्रिएट करेगा? एनर्जी क्रिएट करेगा. कहां करेगा एनर्जी क्रिएट? सिस्टम और सराउंडिंग में. सिस्टम किसको कहेंगे? जिसमें काम करते हैं किसी भी, मतलब आप वेजल्स कर लीजिए, किसी भी रूम में ले लीजिए, किसी भी मतलब आप क्लोज्ड वेजल ले लीजिए, तो वो सब आपका जहां पे आप काम कर रहे हो वो सारा सिस्टम हो गया. और काम के अलावा जो जितनी भी सारी चीजें हैं सिस्टम को छोड़ करके वो सारे के सारे क्या हो गए? सराउंडिंग हो गए. तो सिस्टम और सराउंडिंग आप समझ गए. अब ये सिस्टम और सराउंडिंग में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एनर्जी. कि भाई एनर्जी और मैटर ऑफ स्टेट, ये एनर्जी और मैटर ऑफ स्टेट का क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा या एक्सचेंज ऑफ मैटर ऑफ स्टेट होगा. तो यहां पर आपने देखा तीन तरह के सिस्टम में आप पढ़ने वाले हैं. एक सबसे पहला है ओपन सिस्टम, मतलब खुला हुआ सिस्टम है. जैसे आपकी मम्मी एक सब्जी बॉईल करती है, अगर उसके ऊपर में प्लेट ना हो, डायरेक्ट कढ़ाई हो, तो वो सिस्टम आप जानते हो. सराउंडिंग्स,
और सिस्टम दोनों का कांटेक्ट होता है, वहां पे कोई भी फेज वगैरह नहीं होता है, मतलब अब सीधा सीधी यहाँ का एनर्जी वहां पे ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ का लिक्विड वहां पे वेपर में सराउंडिंग्स में जा सकता है, तो मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है और सबसे ज्यादा एनर्जी का एक्सचेंज होगा। दूसरी बात था क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में क्या होगा, आपका एनर्जी का तो एक्सचेंज होगा लेकिन मैटर के स्टेट का एक्सचेंज नहीं होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम में नाइदर मैटर स्टेट एंड नॉर एनर्जी इज बीइंग एक्सचेंज। तो ये था हमारा सबसे पहला। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि किस तरह का सिस्टम का स्टेट है, द स्टेट ऑफ द सिस्टम। आप पूछ सकते हो मुझे कि सर व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। आप मान लीजिए सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि कहां पे आप कर रहे हैं, सिस्टम का कौन सा स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, आइसोथर्म है, आइसोकोर है, आइसो मतलब ये सारा चीजें जो आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था, सब उसी के बारे में डिटेल हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ये तीनों चीज का हमेशा ध्यान रखना है। एनर्जी मतलब चाहे वो क्लोज सिस्टम में हो, ओपन सिस्टम में हो या फिर आइसोलेटेड सिस्टम में हो, एनर्जी का एक्सचेंज कितना होगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है एनर्जी के ऊपर। थर्मोडायनामिक्स, थर्म क्या, हीट किसको कहते हैं, हीट इज अ मतलब आपको कोई पूछेगा व्हाट इज हीट, हीट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कितना एनर्जी होगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा, ये सारा चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स में। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं द स्टेट ऑफ द सिस्टम। The system must be described in the order to make any useful calculation by specifying the quantitatively each of the properties such as pressure, volume and temperature, as well as the composition of the system. We need to describe the system by specifying it before after the change. You will recall it before after the change. You will recall from the physics course that the state of the system in mechanism is completely specified at a given instant of time by the position and velocity of each mass point of the system. In thermodynamics, a different, much simpler concept of the state of a system is introduced. It does not need detailed knowledge of motion of each particle because we deal with the average measurable properties of the system. We specify the state of the system by the state functions and the state variables. तो सबसे पहले ये जो मैंने लिखा है स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये किन किन चीजों को डील करेगा, ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। मैंने क्या कहा था आपको, ये सारा जो है जो भी चैप्टर 5 में आपने पढ़ा है, चैप्टर 5 में आपने क्या पढ़ा था, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गिल-लुसैक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये सारा चीज आपने पढ़ा था ना। तो मतलब आप समझ जाओ सारा का सारा वही है, बस आपको उसमें जो है एनर्जी के बारे में डिस्क्राइब। एनर्जी के बारे में याद होगा आप लोगों को चैप्टर 4 में बॉर्न हैबर साइकिल था, उसमें आप लोगों को लैटिस एनर्जी निकालने के लिए कहा जाता था, याद है, लैटिस एनर्जी याद कीजिए, लैटिस एनर्जी, टोटल एनर्जी याद आया बॉर्न हैबर साइकिल में। तो उसमें जो भी आप याद, अब यहां पर क्या है, यहां पे आपका मान लीजिए ये एक सिस्टम है। अब ये सिस्टम मैंने जैसे आपको बताया 3 तरह के सिस्टम हो सकते हैं, एक ओपन सिस्टम हो सकता है, दूसरा क्लोज सिस्टम हो सकता है और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है। तो अगर मान लीजिए ओपन सिस्टम है, इसमें जो भी मैटर है तो इसका एनर्जी का जो आदान प्रदान है सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकता है, राइट, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। और यहाँ पर ये स्टेट का भी चेंजेस हो सकता है। लेकिन अगर यही चीज मैं अगर आपको कहूँ ये बंद में है, यहाँ पर ये बंद सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, तो क्लोज सिस्टम में एनर्जी का चेंज तो जा सकता है बट द मैटर ऑफ स्टेट कैन बी चेंज। और अगर मान लीजिए आइसोलेटेड है तो ना ही एनर्जी का चेंज और ना ही मैटर के स्टेट का चेंज होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये सारी जो भी चीज है, ये स्टेट फंक्शंस जो होगा वो या किस तरह का वैरी करेगा, टेम्परेचर वैरी करेगा, प्रेशर वैरी करेगा, वॉल्यूम वैरी करेगा, और क्या अप्लाई करने पर एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उसके बारे में जो आप रीड करोगे, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले the state of the thermodynamic system is described by the measure or microscopic bulk properties. We can describe the state of a gas by quoting its pressure, volume, temperature and the amount of substances. Variable like pressure, volume and temperature are called state variables or state functions. अब ये तीनों चीज जो है ये आपका वेरिएबल्स है।
state variables, otherwise you can say it's state functions. सबसे पहले आपको कौन वैरी करता है, ये सिस्टम में कौन वैरी करेगा? तो सही बात है, टेम्परेचर ज्यादा करोगे या इंक्रीज या डिक्रीज, प्रेशर ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज, वॉल्यूम जो है इंक्रीज डिक्रीज करो, डेफिनेटली यही तीनों चीज जो है आपका क्या करेगा, स्टेट वेरिएबल करेगा। ये सब के सब क्या है, स्टेट के फंक्शंस है। स्टेट वेरिएबल्स मींस यू कैन से इट इज अ स्टेट फंक्शंस, राइट। अब आप पूछोगे सर इसको स्टेट फंक्शंस क्यों कहेंगे? बिकॉज देयर वैल्यूज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम and not on how it is reached. In order to completely define the state of a system, it is not necessary to define all the properties of the system. As only a certain number of properties can be varied independently, this number depends on the nature of the system. Once this minimum number of microscopic properties are fixed, others automatically have the definite value. The state of the surrounding can never be completely specified. Fortunately, it is not necessary to do so. अब आ जाइए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि भाई ये तीनों चीज जो है स्टेट फंक्शंस, आपके जो स्टेट वेरिएबल्स है, यही सारा डिटेल आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, दिस इज व्हाट इज दिस, वाटर बॉटल। इनसाइड दिस वाटर बॉटल देयर इज वाटर। अब देख रहे हो ये कूल वाटर था, रेफ्रिजरेटर के अंदर में रखा हुआ था, इसके ऊपर में वाटर के ड्रॉपलेट्स। अब क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि सर अब सही बात है, अंदर में पानी था कि बाहर में ये वाटर के ड्रॉपलेट्स कैसे आ गए? क्या यहाँ पे एनर्जी का कोई रोल प्ले हुआ है? क्या थर्मोडायनामिक्स का कोई भी एक्टिविटीज यहाँ पे काम किया है? क्या ये स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल्स यहाँ पे काम किया है? यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन, देन आई वुड लाइक टू से यस। Except this, nothing would be possible. अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर अगर ये काम कर रहा है, टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम अगर काम कर रहा है, इसके बिना अगर कुछ भी संभव नहीं है, तो आप मुझे एक चीज बताइए सर, क्या सिस्टम का एनर्जी कैलकुलेट करेंगे या सराउंडिंग? भाई सराउंडिंग तो बहुत बड़ा है ना, राइट है, आपका बात बिल्कुल सही है कि सिस्टम का एनर्जी कैलकुलेट करेंगे या सराउंडिंग। सबसे पहले सिस्टम जो जनरेट होगा, वो सिस्टम में जो कुछ भी सब्सटेंस है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जो उनके स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शंस हैं, वो अप्लाई करने के बाद ही एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो ये कहाँ पे आप अप्लाई करोगे? सराउंडिंग में अप्लाई कर पाओगे? अप्लाई तो करोगे सिस्टम में, सिस्टम में से सराउंडिंग में जाएगा ना। एप्लीकेशन तो आपको करना पड़ेगा सिस्टम में। अगर एप्लीकेशन आप सिस्टम में कर रहे हो तो आप वहां पे पूछ सकते हो क्या सर इसका जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो सराउंडिंग में होगा या नहीं होगा? सी एल्बर्ट आइंस्टाइन हैड सेड अबाउट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये फिजिक्स का चैप्टर है, थर्मोडायनामिक्स आप कह सकते हो, ये फिजिक्स का एक लेक्चर है। और जनरली फिजिकल जो केमिस्ट्री है वो सारे चैप्टर फिजिक्स के ही है, याद रखना। केमिस्ट्री के जो 3 ब्रांचेस है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरली केमिस्ट्री जो हम लोग कहते हैं ना, वो मेन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक जहां खत्म होता है वहां से इनऑर्गेनिक चालू होता है। तो मेन चीज है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि मेटल्स की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे उसको जो है मतलब एक्सट्रैक्शंस किए जा सकते हैं, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका यूजेस क्या है, उसको कहाँ पे लाइफ में यूज किया जाता है, ये सारा हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके डेरिवेटिव कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसमें सारे फिजिक्स के चैप्टर आ जाते हैं, चाहे वो थर्मोडायनामिक्स हो, मॉडर्न फिजिक्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, मतलब कोई भी चैप्टर आप ले लीजिए तो वो सारा का सारा फिजिकल केमिस्ट्री में, मतलब ऑल द नेचुरल फेनोमेन। तो आप अलग नहीं कर सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री को। तो यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जैसे ही कहा था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट वाज द राइट वर्ड। मैं ये गलत नहीं कह रहा हूँ, इवन कोई वर्ल्ड का साइंटिस्ट भी ये गलत नहीं कह रहा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कितना एनर्जी क्रिएट होगा, वो हमें मतलब आप क्रिएट करने का मतलब ये होगा कि आप जैसे ही प्रेशर अप्लाई करोगे, टेम्परेचर अप्लाई करोगे, इंक्रीज करोगे, डिक्रीज करोगे, डेफिनेटली है एनर्जी का जो है इंक्रीज, मतलब एनर्जी में चेंजेस आएंगे।
आप खुद सोच लो, अगर किसी भी आदमी को 4 दिन भूखे रख दो और उसके बाद उसको बोलो कि जोर से चिल्लाने के लिए, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ एनर्जी इनसाइड हिज बॉडी. अभी मैं आप लोगों को जोर जोर से बोल रहा हूं बिकॉज आई हैव फुल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन माय बॉडी. Similarly, as if there will be lack of energy in my body, my voice will be automatically reduced. आपने देखा होगा बहुत सारे आदमी जो बहुत धीरे बात करते, इतना धीरे बात करते कि कभी कभी तो सुनाई भी नहीं देता, राइट? Lack of energy, the system and surrounding, as I have told you, the transfers of energy from one state to the another state. So now let's discuss the internal energy as a state of functions. अब जो हमारा नया टॉपिक है, internal energy as the state of functions. अब आप मुझको पूछोगे सर ये इंटरनल एनर्जी एट स्टेट ऑफ फंक्शन है क्या, राइट? आप पूछ सकते हो मुझको कि सर ये है क्या. व्हेन वी टॉक अबाउट द केमिकल सिस्टम लूजिंग और गेनिंग एनर्जी, वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ क्वांटिटी व्हिच रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इट मे बी अ केमिकल, electrical, mechanical or any other type of energy. You may think of the sum of all these the energy of the system. Thermodynamics, we call it the thermal energy. Thermal energy, U of the system, which may change when the heat is passed into or out of the system, work is done on or by the system, matter enters or leaves the system. These systems are classified according as I have already informed you about the system answer. सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर ये जो एनर्जी की आप बात कर रहे हो वो कौन सा एनर्जी है? ये जो आप टॉपिक लिखे हो इसका जिक्र कहीं हो नहीं रहा है. अब बापू मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ. आपने एनर्जी का नाम सुना होगा डायरेक्टली. 2 एनर्जी जनरली आपने पढ़ा भी होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. और उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन ये चैप्टर जो है हमारा, जो हम पढ़ेंगे वो इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं उस एनर्जी का नाम है थर्मल एनर्जी, डिनोटेड बाय यू. समझ में आ गया आप लोगों को? अब क्वेश्चन है ये यू होगा कहां पे? आप सिस्टम से सराउंडिंग पे वर्क होगा, या सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग में वर्क होगा, या फिर सिस्टम के ऊपर मैटर का वर्क होगा, मैटर के ऊपर में सिस्टम का वर्क होगा, वाइस वर्सा. जितने भी मैंने अभी तीनों स्टेप्स कहे वो तीनों स्टेप का वाइस वर्सा. सिस्टम से सराउंडिंग में होगा या सराउंडिंग से सिस्टम, सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग में होगा या सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम में होगा, सिस्टम के द्वारा मैटर पे होगा या मैटर के द्वारा सिस्टम पे होगा. तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ये सारी एनर्जीज कहाँ पे होगी? ये सारा डिपेंड करेगा ये थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ पे होगा. द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम. कहाँ पे काम होगा? सिस्टम के ऊपर में होगा या सिस्टम के द्वारा होगा? हीट जो होगा, पास जो होगा, सिस्टम के अंदर होगा या सिस्टम के बाहर होगा? और तीसरा, जैसे मैंने बताया आपको, मैटर इंटर्स और लीव्स द सिस्टम. अब इसके अंदर में मैटर जाएगा या मैटर निकलेगा. तो ये सारा डिटेल ही हमको बताएगा द इंटरनल एनर्जी एज द स्टेट ऑफ फंक्शन. सबसे पहला आता है वर्क. आप जानते हो व्हाट इज वर्क? अगर कोई पूछे आपको, याद होगा 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एक चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी, 9th या 8th में ऐसा ही कुछ चैप्टर. तो वहां पर द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, राइट? आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो याद होगा. द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. अब क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क के बारे में. अब वर्क जो होगा वो सिस्टम या सराउंडिंग पे कितना वर्क होगा, आइडियाबैटिक सिस्टम होगा, आइसोथर्म सिस्टम होगा, किस तरह का सिस्टम होगा, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. अगर मैं आपको बोलूं
heat. अगर आप let us examine a change in internal energy by doing the work. We take a system containing some quantity of water in a thermoflask or in an insulated beaker. This would not allow the exchange of heat between the system and surrounding. Through its the boundary, and we call this type of system as an adiabatic. The manner in which the state of such a system may be changed will be called adiabatic process. Adiabatic process is a process in which there is no transfer of heat between the system and surrounding. There the wall separating the system and the surrounding is called adiabatic wall. और सबसे पहले आपको मैंने बताया कि अब जैसे मान लो एक बर्तन है, एक बर्तन में आपने नॉर्मल से पानी, नॉर्मल वाटर, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, ये नॉर्मल वाटर है, तो नॉर्मल वाटर क्या एनर्जी का आदान प्रदान करेगा सिस्टम से सराउंडिंग से? नॉर्मल वाटर है ना, ये आपका पूरा वर्ल्ड हो गया और ये आपका बर्तन सिस्टम, तो सिस्टम के अंदर में नॉर्मल वाटर है, तो क्या नॉर्मल वाटर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करेंगे या नहीं? नहीं करेगा भाई। आपको बस सीधा सीधी सेपरेट क्या क्या कि भाई इसके 2-3 वॉल या चारों साइड से वॉल है और वो वॉल के अंदर में ये वाटर है, ना तो यहाँ का एनर्जी उधर जा रहा है ना उधर का एनर्जी इधर जा रहा है। ये सीधा सीधी आपको सेपरेट किया है सिस्टम और सराउंडिंग को, ये हमारा सिस्टम हो गया और इसके अलावा जितना भी चीज है वो सारा का सारा क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। तो इस दोनों को जो सेपरेट किया, इस सेपरेटिंग प्रोसेस को आप कह सकते हो एडियाबेटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस का क्या नाम होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस। सिस्टम कौन सा होगा? एडियाबेटिक सिस्टम होगा, जहां पर एनर्जी का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। समझ में आया? अब मान लीजिए यहां पर जो सिस्टम है जिसमें टेम्परेचर कुछ रहा होगा, स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो ए मान लीजिए, ए टेम्परेचर है, और इसके अंदर में जो एनर्जी था उसको यूए मान लीजिए। अब जो है आप इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सिस्टम को किस तरह से चेंज कर सकते हैं? भाई जो भी टेम्परेचर था उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो डेफिनेटली है उसमें हीट का, मतलब जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कुछ ना कुछ, मतलब सीधा सीधी अगर आप मुझे पूछिए तो इसमें 2 तरीके से हम लोग, मतलब ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। अब सीधा सीधी समझ लो, जैसे मान लो ये मेरा सिस्टम था, ये सराउंडिंग था नॉर्मल H2 है, इसका टेम्परेचर जो है TA, इसके अंदर जो एनर्जी था, मतलब जो थर्मल एनर्जी UA था, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब इस टेम्परेचर को मैंने राइज कर दिया, बढ़ाया, मतलब TB जो है कर दिया, ठीक है? तो डेफिनेटली है एनर्जी भी बढ़ा होगा, UA से क्या हो गया? UB हो गया। तो आपको कोई पूछेगा TA से TB का मतलब डिफरेंस कितना, मतलब डेल्टा T का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा T का अगर वैल्यू आपको निकालना होगा कि टेम्परेचर में डिफरेंस कितना होगा, तो TB माइनस TA कर सकते हो आप। और पूछेगा एनर्जी में कितना डिफरेंस हुआ, डेल्टा U का वैल्यू कितना होगा, तो UB माइनस UA, या फिर जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे। यही तो जनरली होगा कि भाई सिस्टम पे जो अगर वर्ल्ड के टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, डेफिनेटली अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो एनर्जी में चेंजेस आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। अब आएंगे तो कितना आएगा? डेल्टा H या डेल्टा T का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा U का वैल्यू क्या होगा? यही होगा ना, TB माइनस TA होगा। तो इसमें 2 प्रोबेबिलिटी केस है, या तो TB इज ग्रेटर देन TA, अदरवाइज TA इज ग्रेटर देन TB। या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, नहीं तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यही होगा ना? यस और नो? यस। तुम लोग जानते हो कि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है, राइट? ये जूल का पूरा नाम पता है किसी को? जेपी जूल। ये जेपी जूल जो है, मतलब 1840 के दशक में, 40 से 50 के दशक में उन्होंने कहा था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, no matter how it was done, that produce the same change of the state as measured by the change in the temperature of the system. So it seems appropriate to define a quantity called internal energy, that is U, whose value is characteristics of the state of a system, whereby the adiabatic work WAD required to bring about a change of state
which is equal to the difference between the value of u in one state and that in the another state, that is delta u. Delta u is equal to u2 minus u1. अब जैसे सबसे पहले आपको देखो, जैसे मैंने बताया आपको भाई साहब कि सिस्टम में तभी कोई वर्क होगा, जैसे एडियाबेटिक था, प्रोसेस एडियाबेटिक था भाई साहब, ना तो एनर्जी में कोई चेंज थी ना कुछ भी नहीं था, ये नॉर्मल वाटर था, एक बर्तन के अंदर में मैंने रख दिया था। अब ये नॉर्मल सा वाटर क्या सराउंडिंग के कोई ऊपर में इफेक्ट कर सकता है बिना कोई चेंजेस का? अच्छा एक बात बताओ, जनरल सा एग्जांपल लेता हूं। कोई एक बच्चा है जो क्लास में बैठा हुआ है, वो बच्चा पढ़ने में थोड़ा डल है, लेकिन वो बच्चा अपना सामने खुद से मतलब रखता है, तो क्या वो बच्चा किसी को पकड़ के पीटने लगेगा? इज इट पॉसिबल? अब जब तक उसके ऊपर में वर्क नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उस बच्चे को जब तक कोई टीज नहीं करेगा, उसकी बेइज्जती नहीं करेगी, उसके बार बार जाकर उसको इरिटेट नहीं करेगा, तब तक वो बच्चा क्यों किसी को पीटेगा? बात समझ रहे हो? व्हाट आई मीन टू से? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सिस्टम के ऊपर में वर्क होगा तब तो चेंजेस ऑफ एनर्जी होंगे ना। इंटरनल एनर्जी यू जो है, ये यू आएगा कहां से? ये थर्मल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी है ये। अब कोई पूछेगा तुमको ये यू जो है वो है क्या? यही तो हमारा इंटरनल एनर्जी है भाई साहब। ये इंटरनल एनर्जी जो है आपका, ये आएगा कहां से? मतलब ऑलरेडी इंटरनल एनर्जी जब आपको पता चलेगा भाई एनर्जी में बढ़ा है या घटा, वो लड़का शांति। अब मान लो आपको 9th स्टैंडर्ड में आया 89%, 10th स्टैंडर्ड में भी आ गया 89%, तो आपके मम्मी पापा को जनरली क्या लगता है? ना तो मेरा बच्चा डल हुआ है और ना ही मेरा बच्चा इंटेलिजेंट। व्हाट डू यू सी? आपको क्या दिखता है? सेम थिंग। आपने तो बहुत मेहनत की थी 10th में, लेकिन 9 जितना ही रिजल्ट आया, तो वर्क हुआ या नहीं? जैसे मान लो ये दीवार है, इस दीवार को मैं जोर से यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरह से जोर से फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या ये दीवार हिला? नहीं, वर्क तो मैंने किया ना, लेकिन मेरा W का वैल्यू क्या हुआ? 0। वर्क डन कितना है? 0। क्यों? भाई मोशन में आया नहीं, एक जगह पे था, दूसरा भी वही जगह पे रहा, मतलब बिल्कुल हिला ही नहीं। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ना तो डिस्प्लेसमेंट है ना डिस्टेंस में कोई चेंज आया, तो फिर भाई वर्क कहाँ से हुआ था? बात समझ रहे हो? सिमिलरली ये सिस्टम है, ये सिस्टम के अंदर में जब आप इंटरनल एनर्जी की खोज करोगे कि इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए या तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करो या तो डिक्रीज करो। इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे, उसमें भी तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे ना भाई। इसीलिए मैंने आपको बताया भाई TB इज ग्रेटर देन TA। नॉर्मल पानी था, मैंने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर जैसे बढ़ाया तो भाई साहब एनर्जी में भी तो चेंजेस आएंगे ना। तो इंटरनल एनर्जी U ऐसे U भी हो गया। तो कोई पूछेगा भाई साहब टेम्परेचर का डिफरेंस क्या था? डेल्टा T की वैल्यू क्या थी? तो TB माइनस T1, T2 माइनस T1। एनर्जी का चेंजेस U2 भाई, एनर्जी बढ़ा है या घटा? क्वेश्चन ये है। अब बढ़ा है या घटा है, तो U2 माइनस U1। बढ़ा है, U2 इज ग्रेटर देन U1, तो भाई डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। यही होगा ना। कितना बढ़ा है कितना घटा है? तो ये सारी चीजें जो है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस में आता है। कि एडियाबेटिक प्रोसेस जनरली जो होता है, ये दो तरीके से आप देख सकते हो। TB इज ग्रेटर देन TA, अदरवाइज U2 माइनस UA, जो एडियाबेटिक वर्क है जिसको हम लोग WAD से भी डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, इसमें अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो भाई वॉल्यूम में भी तो इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, In fact, experiment in the above manner were done by J.P. Joule between the 1840 and 50, and he was able to show that a given amount of work done on the system, no matter the amount of work done on the system, no matter how it was done, produced the same change of the state as measured by the change in the system, change in the temperature of the system. So it seems appropriate to define the quantity called internal energy, which is denoted by U,
whose value is characterized of the state of a system, whereby the adiabatic work required to bring about a change of state is equal to the difference between the value of u in one state and that in another state delta u. So delta u is equal to u2 minus u1. अब यहाँ पर आप बोल सकते हो ना कि सर ये है क्या u2 minus u1? भाई साहब यही तो आपका एडियाबेटिक वर्क है। भाई साहब क्या ये एडियाबेटिक वर्क? तो सबसे पहले आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। टेम्परेचर केल्विन में होगा, 0 से अगर मान लीजिए 0.4 डिग्री सेल्सियस भी हुआ ना तो 273 प्लस 0.4 273.4 केल्विन चेंजेस हुआ। बात समझ में आ रहे हो ना? ये एक्चुअली क्या मैं बोल रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में क्या सीखने को मिल रहा है आपको? इस पूरे चैप्टर में एक चीज आपको सीखने को मिल रहा है, वो है चेंजेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी नहीं चेंज होगा तो सिस्टम पे वर्क होगा, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस होंगे तो भाई इंटरनल एनर्जी तो चेंज होगा ही। जो हमारे जे.पी. जूल साहब ने जो कहा था, याद होगा आप लोगों को कि भाई साहब जब तक चेंजेस नहीं होगा इंटरनल एनर्जी में फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर इंटरनल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन। यू क्या हो जाएगा? एक स्टेट फंक्शन होगा। इसी तरह से कुछ और भी अगर आप करें जैसे वॉल्यूम, प्रेशर या टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल इफ वी ब्रिंग अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, अगर 25 डिग्री से 30 डिग्री हमने कर दिया तो टेम्परेचर में चेंज हुआ ना। 25 से अगर 30 करोगे या 25 से 35 करोगे, जो भी चेंज करोगे, जैसे मान लो 25 से 30 किया तो 30 माइनस 25 5 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ। Whether we go straight up to 35 degrees Celsius or 30 degrees Celsius, we cool the system for a few degrees, then take the system to the final temperature. Thus, T is the state function and the change in temperature is independent to the route taken. Volume of the water in a pond, for example, is a state function because there is change in volume of its water is independent of the route by which water is filled in the pond, either by the rain or by the tube well or by the pool. अब सीधा सीधी समझ जाओ बच्चों, जब तुम खाना खाते हो तो गरम गरम खाना खाते हो, ठंडा तो नहीं खाते हो, गरम गरम खाते हो। अच्छा चलो, गर्मा गर्म कुछ भी खाना चाहिए, वड़ा पाव हो, समोसा हो या फिर कुछ भी चीज हो, तो गरम गरम खाने में ज़्यादा मजा आता है। तो अब मान लो अगर वो समोसा ठंडा हो, उतना ठंडा नहीं, मतलब समझ जाओ कि हाथ में इजीली तुम अगर तुमको कंटिन्यूसली 5 मिनट तक होल्ड करना तो कर सकते हो, ऐसा है। तो तुम मुझे पूछ सकते हो यहाँ पर, सर अगर टेम्परेचर जो है कूल हो गया, कुछ डिग्री सेल्सियस कूल हो गया, तो यहाँ पर सिस्टम टू द फाइनल टेम्परेचर, अब आप इसका फाइनल टेम्परेचर ले जाइए, टी जो है हमारा स्टेट फंक्शन है और इसमें जो टेम्परेचर का जो चेंजेस है वो इंडिपेंडेंट है। किस तरह से इंडिपेंडेंट है? जैसे आपने समुद्र में देखा होगा कि समुद्र में से अगर वाटर टैंक वाला एक ट्रक वाटर लेकर के निकाल के चला तो वापस वो समुद्र में जितना स्पेस निकाले वो ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई हो जाता है, चाहे वो ट्यूबवेल से आए, चाहे आपका रेन वाटर जाए, चाहे मतलब कहीं से भी आए या दोनों से मिलके जाए, लेकिन आपका वहां पर देखोगे इट विल बी फिल्ड आइदर बाय द रेन और बाय द ट्यूबवेल। अब आ जाइए हीट के बारे में, ये था वर्क के बारे में जो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए। अगर मैं बात करूं हीट का, तो सिस्टम या सराउंडिंग के ऊपर में हीट कितना लगेगा। इफ वी कैन ऑल्सो चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग और टू द सिस्टम और वाइस वर्सा विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी which is a result of temperature difference is called heat, जिसको Q से डिनोट किया जाता है। अगर आप बात करें, let us consider bringing about the same changes in temperature, the same initial and the final state as before in the work changes as we have seen by the transfer of heat through the thermally conducting walls instead of adiabatic walls. We take water at the temperature TA in the container having thermally conducting walls, say made by the copper and enclosed in the huge heat reservoir at temperature T. The heat absorbed by the system Q can be measured in the temperature difference TB minus TA. In this case, the change in internal energy delta U is equal to Q
where no work is done at a constant volume. The Q is positive when a heat is transferred from the surrounding to the system, and Q is negative when heat is transferred from the system to the surrounding. तो ये था हमारा हीट के बारे में. और जनरली आप बात करें, एक जनरल केस होगा. Let us consider the general case also, in which a change of state is brought about both by the doing work and the transfer of heat. So we can write change in internal energy in the case of delta U is equal to Q plus W. ये आपको पूछेगा ये है क्या Q plus W? ये first law of thermodynamics है. For a given change in the state Q and W can vary depending on how the change is carried out. However, Q plus W, that is equal to delta U, will depend only on initial and final state. It will be independent of the way the change is carried out. If there is no transfer of energy as heat or as a work, which is an isolated system, if W is equal to 0 and Q is also equal to 0, then delta U is 0. तो ये delta U is equal to Q plus W जो है, ये first law of thermodynamics है. क्या है ये? First law of thermodynamics. The energy of an isolated system is constant. It is commonly stated as the law of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. There is a considerable difference between the character of the thermodynamic property, energy, and the mechanical property, such as volume. We can specify an unambiguous value for the volume of a system in a particular state, but not the absolute value of the internal energy. However, we can measure only the changes in the internal energy, that is delta U of the system. तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब जो है ये एडियाबेटिक वर्क तो आप लोग समझ गए. अब मान लीजिए बिना वर्क किए, मतलब बिना वर्क किए सीधा सीधी हीट भाई, हीट के वजह से अब ये मेरा सिस्टम है. दो तरीके से होगा. सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर में मैंने हीट डाला, बात समझ रहे हो? तो डेफिनेटली होगा चेंजेस होगा इंटरनल एनर्जी में. कितना? तो जितना हीट डाला, तो Q से हम लोग डिनोट करते हैं हीट को, तो यहाँ पर डेल्टा. अब क्वेश्चन है, अगर सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा तो पॉजिटिव, सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगा तो पॉजिटिव, और सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा तो नेगेटिव. हीट जो है, ये जो ट्रांसफर हो रहा है, कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो भाई ये डिपेंड करेगा कहां से कहां पर हीट जा रहा है. डेल्टा U जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डिपेंड करेगा हीट सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है या फिर सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है. तो अगर सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगा तो डेफिनेटली सिस्टम में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस होगा, इंक्रीज होगा, तो इसीलिए पॉजिटिव से डिनोट करते हैं. और अगर सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा तो नेगेटिव होगा, तो डेफिनेटली क्योंकि भाई क्या हो रहा है, सिस्टम में आपका जो है वो हीट घट रहा है. तो ये सारा चेंजेस आप जो देख रहे हो ना. अब क्वेश्चन ये है भाई साहब, वर्क भी हो रहा है, हीट भी हो रहा है, तो एनर्जी चेंजेस जो होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो डेल्टा U इज इक्वल टू W प्लस Q. ये सबसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है. डेल्टा U इज इक्वल टू, ये आप बोलोगे कि सर ये V है, नहीं ये U है. एनर्जी चेंजेस जो मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी सिस्टम या सराउंडिंग में एनर्जी में जो चेंजेस होंगे या तो वर्क या हीट के कारण, तो ये सारा जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बार रिवाइज करना है जो जो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से एनर्जी चेंजेस होते हैं, किसके द्वारा एनर्जी चेंजेस होते हैं, इंटरनल एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज, वर्क हीट के आधारों पर. तो ये हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है. आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले दिमाग में कंसेप्ट लाना है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. और इस चीज को ध्यान से समझना है. क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट लेक्चर में काम आएंगे, जो हम इसके बाद जो चर्चा करेंगे. देयर आर टोटल 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स. चारों लॉ में अभी हमने सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, डेल्टा U दैट इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू W प्लस Q. W क्या है? वर्क है. Q क्या है? हीट है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सारी चीजों को एक नोट्स में बना लो.
लेक्चर को अगर मान लो नहीं देखना अच्छा लगता है, पलट दो, साउंड को सुनो, अगर फिर भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है नोट्स को एक बार पढ़ो, जो नोट्स तुम्हें इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड किया गया है। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, गूगल पे सर्च करो, नोट्स डाउनलोड करो, एनसीईआरटी है, बहुत सारी बुक्स हैं, पीडीएफ नहीं है मुझसे मांगो, मैं तुमको पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, और इस चीज को समझो और खुद से इग्नोर करो। आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ।